ऑनलाइन आवाज आ रही है क्लियर सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ कमेंट करके दस्सियो फिर सैशन ਨੂੰ स्टार्ट करिए। लास्ट ਆਪਾਂ डिस्कशन ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, गेट क्लोज कर देना प्लीज। लास्ट ਆਪਾਂ डिस्कशन ਕੀਤੀ ਸੀ यमुना ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਊਜ਼, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। यमुना ਰਿਵਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? यमुना ਰਿਵਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਆਫ ਵਿਚ ਰਿਵਰ? गंगा। गंगा रिवर बारे पढ़िया, ठीक है। गंगा रिवर दा ओरिजिन किस जगह तो हो रहा सी? देव प्रयाग। देव प्रयाग के दो नदियां आपस में मिल रही सी, वो केड़ियां सी? भागीरथी एंड अलकनंदा। भागीरथी ते अलकनंदा दोनों देव प्रयाग ते मिलदी है, गंगा दा ओरिजिन करदी है। और यमुना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ट्रिब्यूटरी दा मतलब सहायक नदी है, वो रिवर जिहड़ी अपना पानी आपां कह सकदे हां दूसरे नु कंट्रीब्यूट कर रही है, दे रही है। यमुना किन्नू पानी दे रही है? गंगा नु। यमुना इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, राइट? गंगा के रिलेटेड अगर मैं डिस्कशन करा तो मैं की कह सकता जी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ते राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। एदा मतलब दो साइड तो कुछ नदियां आके मिलती हैं, कुछ लेफ्ट साइड तो कंट्रीब्यूट करती हैं, कुछ राइट साइड तो कंट्रीब्यूट करती हैं। और एदे रिलेटेड आप की पढ़िया सी कि केड़ी मिनिस्ट्री डील करती है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। हु इज द मिनिस्टर? गजेंद्र सिंह शेखावत इस टाइम की है मिनिस्टर है जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और मिनिस्ट्री 2019 बनी, दो मिनिस्ट्रीज नु कंबाइन करके, राइट? दो मिनिस्ट्रीज नु इकट्ठा कर दिता गया। केड़ी-केड़ी मिनिस्ट्री नु? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। और 2019 तो लेके आप ये कह सकते हैं दी एग्जिस्टेंस है। और यही मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यमुना रिवर दे नाल मतलब ऐदा दे कांसेप्ट दे नाल तो डायरेक्टली स्टैटिक क्वेश्चन पे किया जा सकता है, राइट? यूएनओ डे कदों सी? 24 अक्टूबर। यूएनओ कदों बनया? किस वर्ल्ड वार तो बाद बनया? सेकंड वर्ल्ड वार तो बाद बनया। 24 अक्टूबर 1945 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ? यूएनओ टर्म किन्ने ਦਿੱਤੀ? रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट who gave the term यूएनओ। यूएनओ ਦੇ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? 51। 50 प्लस 1 51वां देश ਕਿਹੜਾ ਸੀ? पोलैंड। ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਸੀ? यस, इंडिया वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएनओ। और ये डाटा कदों दा 1945 और ये डाटा इंक्रीज होंदे हुए आज दे टाइम डाटा कितना हो गया? 193। एंड लास्ट कंट्री वाज साउथ सुडान। साउथ सुडान कदों ऐड हुई? 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ यूएनओ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 51 ਦੇਸ਼ और ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 193, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹਾਂਜੀ नहीं ऑब्जर्वर स्टेट नहीं ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਟਰੀਜ਼ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 193, राइट? और यूएनओ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਪੜਾਂਗੇ ਸਾਰਾ। ਬਟ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ यूएनओ ਦੀ ਲਾਈਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗਨ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਬਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਈਸੀਜੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਟਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ। यूएनओ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। यमुना रिवर की अगर मैं गल कर रहा था, डिफरेंट पॉइंट मैं डिस्कस ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਫੀਕਲ ਕੋਲੀਫਾਰਮ। ਫੀਕਲ ਕੋਲੀਫਾਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਨਾਰਮਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜੀ 500 mpn ਪਰ 100 ml। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 100 ਮਿਲੀ ml ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 500 ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਹੈ। बट डाटा ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫੀਕਲ ਕੋਲੀਫਾਰਮ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਟਰਮ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਾਇਓ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰ ਕਰੰਟ ਰੇਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੈਟਿਕ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੋਲਿਟੀ ਵੀ ਪੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ। ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਡੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਹਾਰਡਨੈਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲੋਰਾਈਡ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਦਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਝੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਹਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹਾਰਡਨੈਸ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਰਡਨੈਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੈਟਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲਿਆ ਲਾਈਕ ਐਮਪੀਐਨ। एमपीएन ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਸੀ? ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਨੰਬਰ।
एमपीएन डायरेक्टली डील्स विद व्हाट, दैट इज फीकल कॉलीफॉर्म। फीकल कॉलीफॉर्म की है वायरस है या बैक्टीरिया? बैक्टीरिया, ਜਿਹਦਾ ਲੈਵਲ 500 एमपीएन ਤੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯਮੁਨਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਆਫ ਗੰਗਾ। ਗੰਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੰਗਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? ਦੇਵ ਪ੍ਰਯਾਗ। ਕਿਹੜੀ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਆਪਸ ਮਿਲੀਆਂ? ਭਾਗੀਰਥੀ ਤੇ ਅਲਕਨੰਦਾ ਦੇਵ ਪ੍ਰਯਾਗ ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ। ਦੇਵ ਪ੍ਰਯਾਗ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਚ ਹੈ? उत्तराखंड। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰ ਆਪਾਂ ਟੌਪ ਤੇ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦਾ ਓਰੀਜਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਚੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। और आ क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ ਕਰੰਟ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਸਟੈਟਿਕ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ एमपीएन ਇੰਡੈਕਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕॉलीफॉर्म, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਗੀਰਥੀ ਤੇ ਅਲਕਨੰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਦੇਵ ਪ੍ਰਯਾਗ ਤੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਯਾਗ ਸੀ? 5 ਪ੍ਰਯਾਗ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ? ਵਿਨਾਇਕਾ ਨੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ VNKRD। V ਦਾ ਮਤਲਬ विष्णु प्रयाग, N ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਦ ਪ੍ਰਯਾਗ, K ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਮ ਪ੍ਰਯਾਗ, ਨੈਕਸਟ RD, R ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੁद्र ਪ੍ਰਯਾਗ, D ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਦੇਵ ਪ੍ਰਯਾਗ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਦੇ ਟੋਟਲ 5 ਪ੍ਰਯਾਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ? ਗੰਗਾ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਯਾਗ ਸੀ ਦੇਵ ਪ੍ਰਯਾਗ। ਔਰ ਦੇਵ ਪ੍ਰਯਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਭਾਗੀਰਥੀ, ਰਾਈਟ। भागीरथी गोमुख ग्लेशियर और अलकनंदा ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਭਾਗੀਰਥੀ। मतलब कहने का मेरा यह है कि दोनों ही ग्लेशियर किथे ने? दोनों ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਹੈ। ਯਮੁਨਾ ਗੰਗਾ ਨਾਲ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਪੀ। मतलब गंगा ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਮਿਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਫਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ, यूपी, राइट। और यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਪੰਜ ਪ੍ਰਯਾਗ VNKRD ਵਿਨਾਇਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੋਲ ਦਾ, ਰਾइट। और ਇਹ ਪੰਜੋ ਦੇ ਪੰਜੋ ਪ੍ਰਯਾਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚ। ਔਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਚ? ਗੰਗਾ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਆ ਆਪਾਂ ਗੰਗਾ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਆ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਆ ਦੇਵ ਪ੍ਰਯਾਗ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਯਮੁਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਲਾਹਾਬਾਦ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, राइट। ये सिर्फ आप रिवाइज कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट न्यूज़ तो आप करते हैं डिस्कस। आ गंगा दा फ्लो है, मैं तुम दसिया सी लेफ्ट साइड ते राइट साइड दो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ने। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज दो तरह दी चीज़ां होंदी है। एक होंदी है जी ट्रिब्यूटरी, एक होंदी है डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी दा सीधा सीधा मतलब की है? पानी कंट्रीब्यूट करना, किसी चीज दे विच आके मिलना, दैट इज कॉल्ड ट्रिब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी ਦਾ मतलब ही देखो डिस्ट्रीब्यूट तो बनया। ਆਪਾਂ कह रहे हैं जी आ चीज मैं ਤੁਹਾਡੇ ਚ डिस्ट्रीब्यूट करती, मतलब निकालती। मेन सोर्स तो कोई पार्ट अलग हो जाना, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरी। और गंगा ਦੀ एक फेमस डिस्ट्रीब्यूटरी ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? हुगली। ਇਹ ਹਰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੇਪਰ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ हुगली ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਕਲਕੱਤਾ। क्योंकि हुगली इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, राइट। और ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈਫਟ ਜੀਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। मतलब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ਕਿਹੜੀਆਂ? 3 ਜੀ ਆਣਗੇ, ਇਹ ਆਏਗਾ दैट इज गोमती, घाघरा, गंडक ਤੇ कोसी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहता राइट सन ਹੁੰਦਾ, ਸਹੀ ਸੀ। कहता जीके ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। सन मतलब सोन नदी गंगा ਨੂੰ किस जगह तो कंट्रीब्यूट करती है? राइट बैंक तो, मतलब राइट साइड तो पानी ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? अपना मिलन देती है, अपना कंट्रीब्यूट करती है। याद वाई दी यमुना ਤੇ दामोदर, ਇਹਦਾ मतलब जिस नदी ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ यमुना, दैट इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ਐਨੀ ਤੱਕ ਕੋਈ डाउट? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਗੀ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ 5 ਮਿੰਟ। नेक्स्ट टॉपिक होने करांगे ਆਪਾਂ स्टार्ट। और हुगली नदी बारे में ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ठीक है। हुगली इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਹੈ। नेक्स्ट ਆਪਾਂ कुछ जैन ਦੇ डेज डिस्कस ਕੀਤੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਵੈਸੇ महात्मा गांधी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ? 1893 ਚ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਆਏ? 1915। 9 जनवरी ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ? ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀय दिवस या NRI डे, ठीक है। 9 जनवरी ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ? NRI डे। who is the creator of Braille system? लुईस ब्रेल। लुईस ब्रेल ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? वर्ल्ड ब्रेल डे, दैट इज 4 जनवरी, ठीक है। 25 जनवरी ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡੇ ਸੀ? 25 जनवरी टूरिज्म डे ਤੇ ਵੋਟਰ ਡੇ। महात्मा गांधी ਦੀ ਡੈਥ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 30 जनवरी 1948। किस जगह ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ?
ਬਿਰਲਾ ਹਾਊਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ठीक है, बिरला हाउस न्यू दिल्ली इवनिंग पीरियड के टाइम नथुराम गोडसे द्वारा अटैक किया गया। बट अपना लिंक ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ? मार्च। ठीक है, तो ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। 4 ਜਨਵਰੀ ਵਰਲਡ ਬ੍ਰੇਲ ਡੇ ਔਨ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆਫ ਲੂਇਸ ਬ੍ਰੇਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਸੀ ਬ੍ਰੇਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। व्हाट इज ਬ੍ਰੇਲ ਸਿਸਟਮ? ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਇੰਪੇਅਰਡ ਹੈ, ਬਲਾਈਂਡ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ। 9 जनवरी महात्मा गांधी वापिस आए, एनआरआई डे। 12 जनवरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नेशनल यूथ डे ऑन द बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद। 15 जनवरी आर्मी डे। क्यों? क्योंकि पीएम करियप्पा वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्हों अपॉइंट किया गया कमांडर ऑफ आर्मी बनाया। 25 जनवरी कर लिया आपा टूरिज्म डे, वोटर डे, और 30 जनवरी की है मार्टियर्स डे। राइट। एक कुछ आपा डेज डिस्कस करके आए सी। और लास्ट में ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ न्यूज़ डिस्कस कर रहा सी, ज्ञानम ਦੇ कुछ पॉइंट्स आपा डिस्कस कर रहे सी। सब तो पहले यूएन ग्लोबल एक्शन क्लाइमेट एक्शन अवार्ड किन्नू मिलिया सी? ग्लोबल हिमालय एक्सपीडिशन। ठीक है, जेडी किदे ऊपर वर्क कर रही सी? सोलर एनर्जी बेस काम कर रही सी, ताकि पहाड़ी इलाके दे विच, माउंटेन एरिया दे विच, अगर मैं डायरेक्टली कहां कि जिथे एनर्जी नहीं प्रेजेंट, सौर ऊर्जा राही उथे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जा सके, ऐस ऊपर वर्क कर रही सी। ऐस करके ना अवार्ड केड़ा मिलिया? यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020। राइट। उस तो बाद आपा बोलीविया दी गल कीती, ओदे नवे प्रेसिडेंट बने सी लुइस आर्क। लुइस ब्रेल, लुइस आर्क। लुइस ब्रेल कौन है? ब्रेल सिस्टम को क्रिएट करने वाला पर्सन। लुइस आर्क कौन है? नवा राष्ट्रपति बोलीविया का। ठीक है, बोलीविया किस कॉन्टिनेंट दे विच? साउथ अमेरिका। टोटल कॉन्टिनेंट कितने? 7 कॉन्टिनेंट है। इंडिया किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है? एशिया। इंडिया के कॉन्टिनेंट का हिस्सा है एशिया। राइट। एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन वास्ते भी ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ हैं, क्वालिटी इंडेक्स वास्ते कमीशन बिठाया ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ। ठीक है, और एक ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਨੇ डिजिटल इंडिया ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। 80,000 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਮਿਲਨਾਡੂ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਹੈ? ਸਦਰਨ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਰੀਆ दैट इज कन्याकुमारी, जिन्हों आप कहने सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया ऑन मेनलैंड। आप पॉइंट नोट करियो, एक सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया ऑन मेनलैंड। अगर मेनलैंड ना हुंदा, मैं सिर्फ क्वेश्चन करदा कि व्हाट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? दैट इज इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट नाम आना सी। अगर मैं कह रहा सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया ऑन मेनलैंड, तो आंसर आएगा कन्याकुमारी। ठीक है, इंडिया की गल कर रहे हैं, बिल्कुल साउथ की गल कर रहे हैं। चलो, इस तो बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। पॉइंट नोट करियो, मैक्सिमम डाटा नोट जरूर करते रहो नाल दी नाल। ठीक है, मैं डिक्टेट कर रहा। फर्स्ट क्वेश्चन आज दा नोट करो। Kerala has become the first state in our country. Kerala has become the first state in our country to fix the MSP, that is minimum support price, जिदे पीछे आज दे टाइम पूरे किसान लड़ रहे हैं। MSP, ठीक है, एग्रीकल्चर बिल के ऊपर सारी डिबेट हो रही है पूरे इंडिया च। करंट आप कह सकते हैं आज दे टाइम बर्निंग इशू की है MSP। ठीक है, एग्रीकल्चर बिल MSP, that is minimum support price। तब अपने देश दे विच पहली स्टेट दैट इज केरला। केरला याद रखियो, केयर कर दी है। ठीक है, केयर तो केरला। केरला फर्स्ट स्टेट बनी जिन्हें फिक्स करता MSP फॉर 16 वैरायटीज ऑफ वेजिटेबल। अलग अलग वैरायटीज दा MSP 16 वैरायटीज मेंशन कीतियां गईयां। उस सेट करने वाली MSP देने वाली पहली स्टेट केड़ी बनी? केरला। MSP का मतलब होता है कि घट्टो घट इन्ना प्राइस तक किसानों को मिलेगा ही मिलेगा। राइट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो फर्स्ट स्टेट केड़ी बनी? केरला। केरला केयर कर दी है, तो पहली स्टेट बन गई इंडिया। ठीक है, जिन्हें 16 वैरायटीज वेजिटेबल दी फिक्स करती है कि इस इनके ऊपर इन्ना MSP इन्ने पैसे किसान को देंगे। राइट। सेकंड पॉइंट, सेकंड आ नोट करियो, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। Railway has launched बॉक्स बना लियो, मेरी सहेली इनिशिएटिव।
मेरी सहेली ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ वन लाइनर्स डायरेक्टली। रेलवे हैज लॉन्च्ड मेरी सहेली इनिशिएटिव for the security of women passenger एंड अंडरलाइन कर लियो। वीमेन ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। वीमेन पैसेंजर across all the zone in India। ਤਾਂ रेलवे ने एक इनिशिएटिव लिया मेरी सहेली, राइट। इनिशिएटिव किंदा है इंडियन रेलवे ਦਾ कि वीमेन ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਟਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜ਼ੋਨ ਕਿੰਨੇ, इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ रेलवे ਜ਼ੋਨ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? 18 ਜ਼ੋਨ ਹੈ। 18ਵਾਂ ਜ਼ੋਨ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ, दैट इज 18ਵਾਂ ਜ਼ੋਨ ਕਿਹੜਾ? ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। तेलंगाना करके ਉਹਨੂੰ 18ਵਾਂ ਜ਼ੋਨ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਟੋਟਲ रेलवे ਜ਼ੋਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, आंसर ਕੀ ਆਏਗਾ? 18। टोटल रेलवे जोन इन इंडिया का आंसर की आएगा जी 18। राइट, ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, which application was recently launched by Indian Army? Which application was recently launched by Indian Army? इंडियन आर्मी ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੀ डिफेंस ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, क्योंकि इंडिया ਦੀ डिफेंस, इंडिया ਦੀ आर्म्ड फोर्स तीन तरह ਦੀ सेना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, और ਆਪਾਂ डायरेक्टली इंडियन आर्मी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। इंडियन आर्मी ने जस्ट लाइक जिवें ਆਪਾਂ मैसेजिंग ऐप लाइक WhatsApp, ठीक है, WhatsApp यूज करते हैं, टेलीग्राम यूज करते हैं, इंडियन आर्मी ने उदा दा एक सिस्टम क्रिएट किया, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, SAI, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, ठीक है। मैं शॉर्ट्स की कहूंगा SAI। जस्ट लाइक मैसेजिंग ऐप है जिवें WhatsApp यूज करते हैं, बट स्पेशली समझ लो सिक्योर है। इंडियन आर्मी आपस दे विच, ठीक है, गलबात करना चाहती है, सिक्योर्ड सिस्टम उन्होंने अपने वास्ते एक मैसेजिंग ऐप लॉन्च की थी इंडियन आर्मी ने, तो SAI, दैट इज सिक्योर्ड एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। नेक्स्ट पॉइंट नोट करियो, कहंदा 29 अक्तूबर ਨੂੰ एक दिन सेलिब्रेट करते हैं, दिन है जी इंटरनेशनल इंटरनेट डे। 29 अक्टूबर, 29th of अक्टूबर लिखो, एरो दे दो, इंटरनेशनल इंटरनेट डे। केड़ी कंट्री ने फाउंड किया सी इंटरनेट? यूएसए, 1969। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਟੈਟਿਕ ਡਾਟਾ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। 29 ਅਕਤੂਬਰ इंटरनेशनल इंटरनेट डे, it was firstly found in USA 29 अक्टूबर 1969, जिसका नाम सी ARPANET, जिन्हों इंटरनेट किया गया। ठीक है, तो 29 अक्टूबर ਨੂੰ इस चीज ਨੂੰ फाउंड किया गया, वर्ड ਦੀ मैं गल कर रहा हां, एंड द कंट्री वाज USA, राइट। और 29 अक्टूबर ਨੂੰ वर्ल्ड इंटरनेट डे, इंटरनेशनल इंटरनेट डे 1969। 1969 तो ही ना मैंने एक पॉइंट पूरी याद आया है कि नोट करियो, एरो देके लिख लिया करो बस, इंडिया में चीज़ां मैं डिस्कस कर रहे हैं। पहली बार इंडिया दे विच कमर्शियल बैंक ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1969। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ बैंक है, आज के टाइम ਆਪਾਂ कह रहे हैं जी PNB बैंक है, जिन्ने भी अपने गवर्नमेंट वाले बैंक है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम कमर्शियल बैंक ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 1969। किन्ने बैंक नैशनलाइज हुए सी? 14। फर्स्ट टाइम 14 बैंक ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ, 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 51 ਰੁਪਏ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ बैंक ਸਰਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ठीक है, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਜਰ ਪਾर्ट ਕਿੰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ फर्स्ट टाइम बैंक ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਏ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 1969।
किन्ने हुए 14 बैंक नेशनलाइज हुए और उस टाइम केड़ा प्राइम मिनिस्टर सी इंदिरा गांधी। ठीक है, ये पहली बार काम जदों होया नेशनलाइजेशन वाला ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ किस गवर्नमेंट ਦੇ टाइम होया इंदिरा गांधी ਦੀ गवर्नमेंट। इंदिरा गांधी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। टोटल कितनियां फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही हैं हले तक इंडिया की? एक ही है, पक्की गल है, एक ही है। ठीक है, ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आंसर किया आएगा इंदिरा गांधी। कितने फीमेल राष्ट्रपति रहे इंडिया के? एक ही रहा, कौन रहा? प्रतिभा पाटिल। कितने फीमेल उपराष्ट्रपति बने इंडिया के? एक भी नहीं बनया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीनों पॉइंट नोट कर लो। ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर पता लग गया कौन है? इंदिरा गांधी। ओनली फीमेल प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, एक चीज क्लियर होगी। ओनली फीमेल प्रेसिडेंट कौन आ गई? प्रतिभा पाटिल। ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन आ गई? इंदिरा गांधी। और ओनली फीमेल वाइस प्रेसिडेंट कोई भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन कितना बना सकते हैं। तो हम क्वेश्चन करेंगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ पोस्ट दसो ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ हले तक कोई महिला नहीं आई। राष्ट्रपति भी बन चुकी है, प्राइम मिनिस्टर भी बन चुकी है, सीएम भी बन चुकी है, मतलब कोई भी पोस्ट पा सकते हैं। ठीक है, बट वाइस प्रेसिडेंट हले तक कोई फीमेल नहीं बनी। ठीक है, अगला पॉइंट नोट करियो। अगर मैं इंडिया की गल करा, मैं हले तक वर्ल्ड की गल करके आया, अगर मैं इंडिया की गल करा 15 अगस्त 1995 इंटरनेट सर्विसेज इंडिया दे विच लॉन्च की। 15 अगस्त 1995 by VSNL, that is विदेश संचार निगम लिमिटेड। VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड। ਇਹਦਾ मतलब मैं कह सकता जी कि वर्ल्ड लेवल की गल करिए तो 29 अक्टूबर 1969 यूएसए वाज द फाउंडर ऑफ इंटरनेट सर्विसेज। राइट, 29 अक्टूबर ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? इंटरनेशनल इंटरनेट डे। ਇਹ ਚੀਜ਼ क्लियर है। इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ सर्विसेज ਕਦੋਂ ਆਈਆਂ? 15 अगस्त 1995 और 95 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 98 तक गवर्नमेंट ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ। गवर्नमेंट ਅਲਾਉ नहीं कर रही ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦਿਓ। बट 98 ਚ ਜਾ ਕੇ नवंबर 1998 ਚ ਜਾ ਕੇ गवर्नमेंट की कह रही है इस सेक्टर ਨੂੰ प्राइवेट सेक्टर वास्ते ओपन कर रही है कि प्राइवेट कंपनियां इन चीजों ਦੇ ਵਿੱਚ अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती है। ठीक है, तो मेन फाउंडिंग ईयर याद रखियो, वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1969 और 1995। ठीक है, 69 आप वर्ल्ड लेवल की गल कर रहे हैं, 95 आप इंडिया लेवल की गल कर रहे हैं। डन है जी, आ क्लियर हो गया 29 अक्टूबर वाला पॉइंट। नेक्स्ट आप एक करंट न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट नोटा। नोट करो, नेक्स्ट न्यूज़ नोट करो नोटा दे रिलेटेड। नोटा वर्ड सुने? ठीक है, जनरली आप इलेक्शन दे विच देखते हैं नोटा दैट इज नन ऑफ द। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕੇਸਿਸ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਨੋਟਾ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਨਨ ਆਫ ਦ। नोटा is what? None of the above. For example, इलेक्शन हो रही है जी, इलेक्शन दे विच 5 कैंडिडेट खड़े। ठीक है, 5 कैंडिडेट खड़े है इलेक्शन दे विच। पर्सन गया अपने वर्गा इलेक्टर। इलेक्टर का मतलब जेड़ा वोट पा सकता है। वोट कौन पा सकता है इंडिया च? जिंदी उम्र 18 साल है, घट्टो घट उम्र 18 साल होनी चाहिए, वो बंदा वोट पा सकता है। वो पर्सन गया, वो कहता यार 5 दे 5 कैंडिडेट मैनू नहीं पसंद, कहता मैनू ऑप्शन दियो। तो गवर्नमेंट ने ऑप्शन दी, दैट इज कॉल्ड नोटा, नन ऑफ द अबव। मैनू ऊपरले 5 दे 5 जिन्ने भी कैंडिडेट खड़े मैनू कोई नहीं पसंद, मैं वोट पा सकता। एंड नोटा वर्ड इज डायरेक्टली लिंक्ड विद नेगेटिव वोटिंग। पॉजिटिव वोटिंग नहीं है, नेगेटिव वोटिंग। एंड नाउ नोट करो, नोटा इज डायरेक्टली लिंक्ड विद व्हाट? दैट इज नेगेटिव वोटिंग। क्योंकि जिन्नी ज्यादा वोट नोटा नु पएगी, एक चीज सोचो, नोटा दी वोट वध रही है, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, दैट इज कॉल्ड नोटा, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वोटिंग। आप पॉइंट क्लियर हो गया?
ਤਾਂ ਨੋਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੋਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂ ਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਕੀਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਚਿਕਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ। ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਬਵ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜੇ? ਆ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਐਮਐਲਏ ਦੀ VOTING ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ 5 ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ 5 ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ VOTING ਮਸ਼ੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਕਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਨੋਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਟਨ ਹੁਣ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, दैट इज नन ऑफ द अबव। ਉੱਪਰਲੇ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯਾਚਿਕਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਅਗਰ ਇਲੈਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕਿਉਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣ? ਆ ਉਹਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁਣ ਨਿਕਾਲਨੇ ਆ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਬੇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਆ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਔਰ यूपीएससी ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ मींस डायरेक्टली पीपीएससी पिक कर सकती है। क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ। क्वेश्चन ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ? ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੀ ਏ ਬੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, सोचो बी सी फंडामेंटल राइट। चलो हुण आपां देखो पता की होंदा क्वेश्चन ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਚੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। फंडामेंटल राइट ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ 12 ਤੋਂ 35 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਪੜਾਂਗੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਕਰਦਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਕੀ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਹੈ? ਯੈਸ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਕੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਹੱਲੇ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟੀ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕਰਵਾਨੀ ਹੈ ਬਟ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ। 26 जनवरी 1950 ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਅ ਬਣਾਣੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ। ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾनिक ਬੋਡੀ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਆਰਟੀਕਲ 326 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 326, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਜਾਂ 18 ਪਲੱਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ, दैट इज कॉल्ड राइट टू वोट। इट मींस अगर ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਇਜ਼ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड लीगल राइट बोथ, दोनों है। ऐसा मतलब दोनों ऑप्शन होनी चाहिए बट कोई ऑप्शन नहीं मिली। ऐसा नहीं कोई ऑप्शन बोथ दी तो नहीं मिली ना। हुन एग्जामिनर ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ एक ऑप्शन पिक करवाना चाह रहे, अगर एक ऑप्शन पिक करनी है फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देना चाहना।
राइट टू वोट इज व्हाट, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। मैं डिनाई नहीं कर रहा, एक लीगल राइट नहीं है, मैं कह रहा ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ 326। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਮੈਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦਊਂਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕॉन्स्टिट्यूशनल राइट। राइट ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਥ ਵਾਲੀ ਉਹਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਰਾਈਟ ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨੋਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨੋਟਾ ਮੀਨਸ ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ 2013 ਦੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ 2013 ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੀ ਸਾਥਾਸਿਵਮ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੀ ਸਾਥਾਸਿਵਮ। ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੌਣ ਸੀ? ਪੀ ਸਾਥਾਸਿਵਮ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨੋਟਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਨੋਟਾ ਨਨ ਆਫ ਦਾ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 2013 ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਅੰਡਰ ਦਾ ਹੈਡ ਆਫ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਸਾਥਾਸਿਵਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਨੋਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਸ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ? ਪੀ ਸਾਥਾਸਿਵਮ, ਜਿਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨੋਟਾ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕੇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਾਂ ਮੇਨ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੈ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਨੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਬਟਨ ਹੈ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਨੋਟਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਹੈਡ ਕੌਣ ਸੀ? ਪੀ ਸਾਥਾਸਿਵਮ। ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਸਨ ਸੀ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ रंजना प्रकाश देसाई, जस्टिस रंजन गोगोई, ये भी पर्सन आपको सुने हैं, रंजन गोगोई सीजीआई रह चुके हैं। ठीक है, एस तो पिछला सीजीआई रह चुके हैं अपना। एस टाइम कौन है इंडिया का चीफ जस्टिस? एस ए बॉब्डे। आ नोट करियो 2-3 पॉइंट। एस टाइम इंडिया का चीफ जस्टिस एस ए बॉब्डे, एस ए बॉब्डे। ठीक है, एस ए बॉब्डे। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਬੋਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਨਿਆਇधीश ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰਵੋच्च ਅਦਾਲਤ ਦਾ। ਸਰਵੋच्च ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ? ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਸ ਏ ਬੌਬਡੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ? ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪੀ ਸਾਥਾਸਿਵਮ ਸੀ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਨੋਟਾ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੋਟਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੀ ਸਾਥਾਸਿਵਮ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ। ਐਨੀ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਡਨ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ? ਐਨੀ ਤੱਕ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 19 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ। 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 19 ਆਰਟੀਕਲ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ 12 ਤੋਂ 35 ਆਰਟੀਕਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ 19 ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। 19 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, बोलन का अधिकार, अपन को एक्सप्रेस करने का अधिकार, आप कोई भी चीज कह सकते हैं। आर्टिकल 19 के अंदर
ठीक है। आर्टिकल 19 अपना की एक फंडामेंटल राइट है जेड़ा किस चीज बारे दस रहा है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। डन, ये पॉइंट क्लियर होया। ये सिर्फ मैं अगले पॉइंट को रिलेट करना मैं ता तो पहले भी बैकग्राउंड दसी कि एक फंडामेंटल राइट है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेगेटिव वोटिंग का कांसेप्ट में तुम दस रहा है। नेगेटिव वोटिंग मतलब नोटा दी गल हो रही है, कोई भी पर्सन नहीं पसंद ਅਸੀਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਤੇ VOTING ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਜੈਕਟ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਮਸ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 19। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ अपने व्यूज एक्सप्रेस कर रहे हैं कि कोई भी अबव पर्सन सानू नहीं पसंद। ਇਹਦਾ मतलब अगर ਤੁਹਾਨੂੰ पूछे एग्जामिनर राइट टू रिजेक्ट इज व्हाट, इट इज अ फंडामेंटल राइट प्रेजेंट अंडर आर्टिकल 19(1) सब क्लोज ए। आप डायरेक्टली नोट कर, ठीक है। पहले नोट करना, फिर मैं पूरे दे पूरे 4 पॉइंट होने ब्रीफ करता हूं। आ डायरेक्टली लाइंस नोट कर लो तुसी, राइट टू रिजेक्ट आवली लाइट अगर वैसे देखना पिछू बंद हो जाए बेटर है, ठीक है। ऐसी ऊपर प्रोजेक्टर है नहीं है, देखना बंद। चलो देख रहे हैं, लास्ट में विजिबल है, सही है, विजिबिलिटी है। राइट टू रिजेक्ट कैंडिडेट, कैंडिडेट नु रिजेक्ट करना, कहता यस इट इज अ फंडामेंटल राइट। किदा पार्ट है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है। और राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन होने करके आए आर्टिकल 19 ਉਹਦੇ सब क्लॉजेस ਚ प्रेजेंट है कि ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ व्यूज दे सकते हैं, ਆਪਾਂ एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। कहंदा राइट टू रिजेक्ट, अगर ਆਪਾਂ राइट टू रिजेक्ट ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, रिजेक्ट अगर ਆਪਾਂ कर सकते हैं, कहंदा रिजेक्ट ਕਰਨ ਦਾ मतलब नेगेटिव वोटिंग डायरेक्टली लिंक विद नोटा। और नोटा ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ 2013 ਪੀਸ आता ਸੀ। आप पॉइंट क्लियर हो गए। तो ये सारी न्यूज़ जो स्टैटिक कितना दे निकाल सकता है, दो डायरेक्टली क्वेश्चन अपने स्टैटिक दे मिले, केड़े-केड़े, राइट टू रिजेक्ट, यस इट इज अ फंडामेंटल राइट। नोटा दा कांसेप्ट 2013 दी जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट दा चीफ जस्टिस कौन सी, पी साथा सिवम, ठीक है। इस तो इलावा कितना दे क्वेश्चन आ चेक करो। हुन 2013 दे विच सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करता जी नोटा दा कांसेप्ट तुसी लेके आ सकदे हो इलेक्शन दे विच। और उस टाइम गुजरात वाज द फर्स्ट स्टेट जिन्हें इंप्लीमेंट किया। और 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਐਮ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ। ਔਰ 2014 ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਜਿਹਨੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗੁਜਰਾਤ। ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ठीक है। गुजरात गवर्नमेंट वाज द फर्स्ट टू इंप्लीमेंट नोटा इन इलेक्शंस। नोटा दी फुल फॉर्म नन ऑफ द अबव, ठीक है। सिर्फ क्योंकि ना हर पेपर का एक लैवल है। अगर मैं बेसिक टू बेसिक पंजाब दे सिंपल एग्जाम की गल करा, आप कह सकते हैं जी आप ज्ञानम की मैगजीन पढ़ ली, वन लाइनर डायरेक्टली पिक हो गई। बट अगर आप अच्छे पीपीएससी के एग्जाम च जा रहे हैं, इदां दी चीज़ां आपां नूं निकाल, ठीक है। तो हर न्यूज़ की डिस्कशन आप इदां ही करा, एक एक चीज़ नूं कि उन्हां चों स्टैटिक किदां दे पिक हो सकती है, राइट। इस तो इलावा नोट करो, कहंदा ऑप्शन नोटा लोक सभा दे विच, लोक सभा इलेक्शन दे विच पहली बार 2013 दे विच यूज हुई। नेक्स्ट पॉइंट नोट करियो, दो तरह के इलेक्शन चल रहे, मैं थोड़ा ब्रीफ करदा, अभी नोट पहले सुन लियो फिर नोट कर लो। अगर आप अपने देश की गल कर रहे हैं, आप कहते हैं अपने देश लेवल पे संसद है जिन्हों आप पार्लीमेंट कहने हैं, जिहड़ी कानून बनाती है अपने वास्ते, है ना, लॉ बनाती है। पार्लीमेंट दे विच दो सदन लोक सभा ते राज्य सभा, केड़े-केड़े सदन है, लोक सभा ते राज्य सभा, ठीक है। लोक सभा ते राज्य सभा दो सदन संसद का हिस्सा है। मान लो मैं इस पूरे रूम नु पार्लियामेंट कह रहा, तुसी एंटर कीते, इस रूम दे विच आए, तुसी एंटर करदियां सर दो साइड देखिया, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड, किस साइड बैठी है, एल तो लेफ्ट, एल तो लोक सभा, आर तो राइट, आर तो राज्य सभा, मतलब इस संसद दे विच कितने सदन है, दो सदन, ठीक है। कहंदा लोक सभा दे चुनाव दे विच पहली बार नोटा दा कांसेप्ट कदों यूज होया, 2013, बट राज्य सभा च पहली बार कांसेप्ट 2014 दे विच यूज होया, राज्य सभा दे चुनाव, ठीक है। हुन नोट कर,
ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ? ਯੈਸ, 13 ਦੇਸ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਡੀਆ 14ਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਟਿੰਗ ਮੀਨਸ ਨੋਟਾ, ਨਨ ਆਫ ਦ ਅਬਵ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਨੋਟਾ ਦਾ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ਦੇ डिसीजन 2013 ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2014 ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਨੋਟਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇੰਡੀਆ ਚ ਪਹਿਲੀ ਕੰਟਰੀ ਬਣੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, 14ਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਟਿੰਗ ਮੀਨਸ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਜੈਕਟ, ਐਂਡ ਯੈਸ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ। डन? एनी तक कोई कंफ्यूजन? एस सिंबल जेड़ा सिंबल है नोटा का भी नोट कर लियो। सिंबल वाज डिजाइंड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन अहमदाबाद दे विच। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन अहमदाबाद जिन्हें नोटा का डिजाइन दिता, ठीक है, जिन्हों आज दे टाइम आपां ईवीएम मशीन्स दे ऊपर देख फर्स्ट सैशन ना लगाया होए तो उन्होंने ऐप के ऊपर चेक जरूर कर लियो, ठीक है, क्योंकि आज तो आप सिर्फ ब्रीफ किया, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मैं फर्स्ट डे करवाए सी। कल सैशन नहीं लग्या सी, परसों लगाया सी आप करंट सैशन, ठीक है, तो उन्होंने जरूर एक बार कर लियो। एनी तक नोट हो गया? क्लियर हो रहा है? समझ आ रही है? ठीक है, मेन चीज है समझ आनी चाहिए है। कंटेंट भावें घट कर लो, मैं कहना चीज़ां दिमाग च फिट होनी चाहिए, ठीक है। नोटा दी न्यूज़ कवर होगी। नेक्स्ट एक न्यूज़ डिस्कस करते हैं जी, ब्रिक्स समिट 20। एनो नोट करें, हेडिंग दे दो ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स नु डिस्कस करते हैं। सिंपल जी डिस्कशन होए तो मैं कह सकता जी ब्रिक्स दा समिट इस बार किथे होया, किन्ने होस्ट किया, खत्म है, ठीक है। बट ओदे विच की चीज़ां डिस्कस कीतियां गईयां, ये अपने पेपर वास्ते इंपॉर्टेंट बन गया, ठीक है। सब तो पहली चीज ब्रिक्स की मैं गल कर रहा था। ब्रिक्स रशिया दे विच होस्ट कंट्री केड़ी है? रशिया। पहला पॉइंट नोट करो। 2020 हर साल कोई ना कोई देश इनू होस्ट करता है, लीड करता है। 2020 दे विच किन्ने कीता? रशिया। और एक सब तो इंपॉर्टेंट चीज मैं दसा वो की है, इनने जेडे समिट, समिट का मतलब मीटिंग है, और कुछ नहीं है, ठीक है। समिट का मतलब ये मीटिंग है, हर साल इनकी मीटिंग होनी है। और जदों इनकी मीटिंग होनी है साइक्लिक ऑर्डर च होंदी है। इस बार रशिया, इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, फिर ब्राजील, ये 5 देश है जी, उहदे नाम तो बनया ब्रिक्स। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 देश। चलो ये मैं डिस्कस करदा, पहले कंट्रीज नोट करो। बी का मतलब ब्राजील, आर का मतलब रशिया, आई का मतलब इंडिया, सी तो चाइना, एस तो साउथ अफ्रीका, ठीक है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका की जदों ब्रिक्स बनया, ब्रिक्स ही सी? नहीं जी, पहला ब्रिक्स। कहना मतलब आ जेड़ा एस है पहला नहीं सी, पहला सिर्फ ब्रिक्स ही, 4 देशों का समूह सी। एस तो मतलब साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने इन फ्यूचर जाके ज्वाइन किया, तो अपने वास्ते बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कदों किया, साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कदों किया, ठीक है, कदों फाउंड किया गया, इदां दे बहुत सारे अपने वास्ते क्वेश्चन बन गए। उस तो पहला एक पॉइंट नोट करो, जिहड़ी ऊपर लाइन लिखी है, इट वाज द फर्स्ट वर्चुअल समिट ऑफ ब्रिक्स। वर्चुअल का मतलब ऑनलाइन, वीडियो कॉन्फ्रेंस दे राही किया गया, क्योंकि कोविड-19 का कंसेप्ट चल रहा है जी। कोरोना वायरस करके किते भी देश समझ लो आपस में नहीं मिल सकते, इस करके अपने हिस्ट्री दे विच ब्रिक्स दा पहला वर्चुअल समिट होया। वर्चुअल मतलब ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस, होस्ट कंट्री रशिया, ठीक है। एस स्लाइड दे क्वेश्चन क्लियर हो गए? केड़े-केड़े लीडर आ नोट करें। ब्राजील बिल्कुल सीक्वेंस 14 ही लिखे, समझ लो ब्रिक्स पे
ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਪੰਜ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਐਰੋ ਦੇ ਕੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ੈਰ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ, JAIR। ठीक है, मैं जूम कर देना थोड़ा, देख लियो। ये ब्राजील दा राष्ट्रपति है इस टाइम, JAIR, दैट इज जेर। अलग पावर ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, मतलब वो प्रिजाइडिंग है, ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ, ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੋਸਟ ਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਤਾਂ ਪੰਜ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪੰਜ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ब्राजील, जैर बोल्सोनारो, बोल्सोनारो, ठीक है, ये प्रेसिडेंट बने। रशिया का व्लादिमीर पुतिन, होस्ट कंट्री इन, हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं, ये सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई है, वेंकैया नायडू वाली नहीं, वो दूसरी सी, अगर आई थिंक शायद तुसी वो सार्क सी, हाँ वो सार्क सी। ठीक है, ये अपन रीसेंट ब्रिक्स की गल कर रहे हैं। ठीक है, सार्क नाल ना मिक्स करियो। इंडिया वालों नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर इंडिया, ठीक है, जिन्हें कंट्रीब्यूट किया। चाइना ते रशिया, चाइना दा प्रेसिडेंट कौन है जी? शी जिनपिंग हैगा, ही है बट नाम च शी है। ठीक है, एक्स नु शी कहा जाता है, एनु ए नहीं कहांगे एक्स आई जिनपिंग, शी जिनपिंग, एंड द प्रोनाउंसिएशन की है शी जिनपिंग। और साउथ अफ्रीका दा सिरिल रामाफोसा राष्ट्रपति है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦੇ ਪੰਜ ਲੀਡਰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਹੋਸਟ ਕੰਟਰੀ ਰਸ਼ੀਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਹੋਸਟ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਸ਼ੀਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹੈਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਸਟ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਬਣਿਆ? ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ। प्रेसिडेंट कित्थों दा? रशिया दा। पहले तो पांच देशों बारे पता लग गया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राजील का राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो, रशिया पुतिन, इंडिया अपना मोदी आ गया, चाइना का प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग, साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट। एक चीज और, एक चीज है, देखो ये सारे राष्ट्रपति है बट इंडिया का प्रधानमंत्री, इंडिया दे विच प्राइम मिनिस्टर दा ओहदा राष्ट्रपति तो भी ऊपर है। ये चीज किन्ने कही सी? बी.आर. अंबेडकर ने। बी.आर. अंबेडकर ने इंडिया दे प्राइम मिनिस्टर नु यूएसए दे राष्ट्रपति नाल कंपेयर किया सी। वो कहंदा कि इंडिया दे विच प्राइम मिनिस्टर दी पोस्ट की है, अप है, नहीं तो आप इत्थे किंदा चेहरा देखते? रामनाथ कोविंद दा, इंडिया दा प्रेसिडेंट, बट नहीं, इंडिया दा प्राइम मिनिस्टर। तुसी एक चीज देखो, जिन्नियां भी न्यूज़ देखदे हैं कि राष्ट्रपति नु देखदे हो? नहीं जी, प्राइम मिनिस्टर हर जगह अप है, क्योंकि इंडिया दे विच प्राइम मिनिस्टर दा ओहदा ज्यादा ऊपर है। ठीक है, द पांच कंट्रीज, उन्हां दे लीडर्स, होस्ट कंट्री रशिया, 2020 ब्रिक्स समिट। ठीक है, इस तो इलावा चलो ब्राजील दी मैं गल करा, थोड़ा जिहा आपां इहदी कैपिटल करेंसी दी गल कर लैंदे आ नाल दी नाल। ब्राजील दी कैपिटल ब्राजीलिया, करेंसी रियल, ब्राजील, ब्राजीलिया, रियल। सुननी है सुन लेना, लिखनी है लिख लो। ठीक है, डिपेंड अपॉन यू। ब्राजील, ब्राजीलिया, रियल, REAL। ठीक है, रियल। कैपिटल ते करेंसी मैं नाल नाल बोलूंगा, पहले कैपिटल आएगी फिर करेंसी आएगी। ब्राजील, ब्राजीलिया, कैपिटल, करेंसी रियल, REAL। रशिया, रशिया दी कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबल, रशिया, मॉस्को, रूबल। चलो इत्थे ना क्वेश्चन होर बड़ा इंपॉर्टेंट मिलिया, भी सुनियो। ब्राजील दी मैं गल करा, ब्राजील किस कॉन्टिनेंट च? साउथ अमेरिका च। ब्राजील केड़े कॉन्टिनेंट च? साउथ अमेरिका। आपने कोई टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, मैं उस टाइम तो दस्से भी सी। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नीचे अंटार्कटिका, राइट साइड की आ गया ऑस्ट्रेलिया आ गया। और ब्राजील किंदा हिस्सा है? साउथ अमेरिका का। ये रशिया किंदा पार्ट? यूरेशिया। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अगर क्वेश्चन पूछन रशिया किस कॉन्टिनेंट ਦਾ हिस्सा है, एक कॉन्टिनेंट ਦਾ हिस्सा नहीं है जी, दो कॉन्टिनेंट मिला के ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ यूरोप ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ रशिया ਦਾ ਪਾर्ट है, एशिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ रशिया ਦਾ पार्ट है। यूरोप ਤੇ एशिया ਤੋਂ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ यूरेशिया। आ नोट करियो,
रशिया जिहड़ा देश है किस महाद्वीप का हिस्सा है, किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, तो मैं आंसर दो तरीके नाल दे सकदा। मैं कह सकदा यूरोप एंड एशिया, और एंदे स्टार्टिंग वाले वर्ड उठा लो EUR, यूरेशिया। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, यूरेशिया। ਇਹਦਾ मतलब मैं कह सकदा रशिया यूरेशिया ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, यूरोप ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। इंडिया ਕਿਹੜੇ कॉन्टिनेंट 'ਚ है, एशिया चाइना एशिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ है, और साउथ अफ्रीका अफ्रीका तो ही आ गया सदर्न पार्ट से। ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ यूरेशिया ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ठीक है। रशिया ਉਹ मैं समझ गया, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ डिस्कशन अलग हो जाएगी, ਉਹਦੇ चार पार्ट है, ठीक है। इन फ्यूचर वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। आज चीज क्लियर होगी जी, ये कॉन्टिनेंट क्लियर हो गए। ब्राजील ब्राजीलिया रियल, रशिया मॉस्को रूबल, इंडिया दिल्ली रुपी, चाइना बीजिंग। चाइना दी कैपिटल की है जी बीजिंग, करेंसी की है रेनमीबी, युआन पड़ी होएगी है ना, रेनमीबी। युआन होता है एक यूनिट है, रेनमीबी, और नीचे युआन लिख लेना YUAN, रेनमीबी RENMIBA। कैपिटल है जी बीजिंग, करेंसी है रेनमीबी, और युआन होता है एक यूनिट है रेनमीबी का, ठीक है। तो दोनों लिख लेना, जेडी चीज प्रेजेंट हो हिट कर। साउथ अफ्रीका का नाम किसी पहले सिरिल रामाफोसा, CYRIL, सिरिल रामाफोसा, ठीक है। पहले इन्नी चीज क्लियर होगी। साउथ अफ्रीका की मैं डिस्कशन अगले स्लाइड दे विच करन जा रहा है, क्योंकि उसकी तीन कैपिटल है साउथ अफ्रीका दी। वो किस तरह अलग अलग तीन कैपिटल, एक का प्रिटोरिया, यानी तीन कैपिटल है, एक है प्रिटोरिया। प्रिटोरिया इज द एग्जीक्यूटिव कैपिटल, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, कार्यपालिका दे सारे काम प्रिटोरिया च कीते जांदे। साउथ अफ्रीका दे फर्दर 3 पॉइंट, 3 राजधानियां, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल, और नीचे भी लिखा हुआ है प्रिटोरिया इज द एग्जीक्यूटिव कैपिटल, राइट। नेक्स्ट अपने को आ गई थी केप टाउन। आपा जनरली केप टाउन सुनते हैं, ठीक है, बट एक्चुअल जो 3 अलग अलग राजधानी अलग अलग काम कीते जांदे, मैं सारा तुहानू दस रहा। अगर एक ऑप्शन होए तो डायरेक्टली पिक कर लांगे साउथ अफ्रीका दी केप टाउन, ठीक है। केप टाउन इज द लेजिस्लेटिव कैपिटल, विधान पालिका, कानून बनाने का काम वो सारा केप टाउन च हुंदा है, ठीक है। केप टाउन इज द लेजिस्लेटिव पार्ट, और ब्लोइंग फाउंटेन इज द जुडिशियल कैपिटल, न्यायपालिका। ਇਹਦਾ मतलब सारी जुडिशरी साउथ अफ्रीका च किथे है जी, ब्लोइंग फाउंटेन। आ तीन नाम ਇੱਥੇ भी पए है, प्रिटोरिया, ब्लोइंग फाउंटेन एंड केप टाउन, और करेंसी है रैंड, RAND। प्रिटोरिया, ब्लोइंग फाउंटेन एंड केप टाउन, राइट। तो साउथ अफ्रीका आप 5 दे 5 देश, उन्हां दे कॉन्टिनेंट, उन्हां दी कैपिटल, उन्हां दी करेंसी डिस्कस कर रहे हैं। और ब्रिक्स 2020 रशिया, फर्स्ट वर्चुअल समिट ऑनलाइन होया, होस्ट कंट्री रशिया, रशिया का होस्ट लीडर कौन बनया, व्लादिमीर पुतिन। डन, एना क्लियर है सर। एक तो साउथ अफ्रीका, हां जी, साउथ अफ्रीका ने कब ज्वाइन किया, वो सारा वही डिस्कस करने लगे। पहले ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਵਾਸ ओरिजिनली शेड्यूल्ड। देखो ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਮਿਟ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੋਸਟ ਕੰਟਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇਗੀ, ਇੰਡੀਆ ਬਣੇਗੀ, क्योंकि ये सारे कांसेप्ट में तुम दसिया साइक्लिक ऑर्डर से चल रही है। 2020 का रशिया का, 2021 इंडिया, 2022 कितने होएगा चाइना, 2023 कितने होएगा साउथ अफ्रीका, फिर ब्राजील ते आ जाएंगे। साइक्लिक ऑर्डर ऐसा आगे के प्रोसीड करेगा, राइट। कहंदा ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ओरिजिनली ਹੋਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, सेंट पीटरबर्ग। ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, बट ਇਹਨੂੰ कैंसिल कर दिता गया क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस पॉसिबल नहीं हो पाई कोविड-19 करके। 21 तो 23 जुलाई 2020
ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮਿਟ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਬਰਗ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਹੜਾ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ठीक है, जुलाई च होना सी बट नवंबर च होया कोविड-19 नाल यूएन दी केड़ी एजेंसी डील करदी है? WHO। यूएन दी एक एजेंसी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जेडी पूरी गाइडलाइंस जारी करदी है वर्ल्ड लेवल पे, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संधि। ठीक है, एजेंसीज भी ਆਪਾਂ 1 बाय 1 करांगे, बट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पिछले सेशन थोड़ा ਜਿਹਾ ब्रीफ ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि WHO 7 अप्रैल 1948 ਨੂੰ ਬਣੀ। 7 अप्रैल ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? वर्ल्ड हेल्थ। ठीक है, आ ब्रिक्स बारे उनकी फाउंडिंग कदों हुई, किन्ने टर्म दी, आ नोट कर लियो। ब्रिक्स पहला ब्रिक हुंदा सी, ये टर्म देने वाला पर्सन जिम ओनील। पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन नोट करो, ब्रिक टर्म वाज गिवन बाय जिम ओनील। ये ब्रिटेन दा इकोनॉमिस्ट सी पर्सन जिम ओनील, और एक कंसेप्ट उन्हें 2006 दे विच देता सी ब्रिक दा, फाउंडेड इन 2006। ठीक है, आप ये कह सकते हैं 2006 च कॉन्फ्रेंस हो गई सी, वो पर्सन 2006 दे विच मिल चुके सी, बट एंदे प्रॉपर जेडे एनुअल समिट कदों शुरू होए? 2009 दे विच, कि हर साल एंदे मीटिंग्स कीतियां जाणगियां, वो आप कह सकते हैं 2009 तो शुरू। फाउंडेड इन 2006, बट एनुअल मीटिंग्स कदों शुरू हुईयां? 2009। और पहला समिट ना रशिया ने होस्ट किया, और 2020 वाला भी किन्ने होस्ट किया? रशिया। ठीक है, और आ पॉइंट साउथ अफ्रीका 2010। साउथ अफ्रीका ने कदों ज्वाइन किया ब्रिक्स नु? ब्रिक नु ज्वाइन किया 2010, ब्रिक बन गया जी ब्रिक्स। 2006 फाउंडेशन, 2009 एनुअल समिट शुरू हुए, 2010 साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन, ब्रिक की बन गया ब्रिक्स बन गया। ठीक है, ब्रिक इन 2009, 2010 की साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कर लिया। बैकग्राउंड क्लियर होगी? ठीक है, ब्रिक ब्रिक्स किवें बनया, ब्रिक टर्म किन्ने देती है चीज़ का? ब्रिक्स 2020 वर्चुअल समिट, पहला होस्ट कंट्री रशिया। ठीक है, सिंपल जा क्वेश्चन तो डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि 2020 का समिट। ठीक है, बट डीप टू डीप क्वेश्चन की बन सकते हैं, उन्होंने आप डिस्कशन कर रहे हैं। अगला पॉइंट आ नोट करियो, अगर मैं कहा जी ब्रिक्स दे जिन्ने भी नेशन है उन्हां सारियां नूं मैं मिला दा, पूरे वर्ल्ड नाल कंपेयर करा, पूरे संसार नाल कंपेयर करा, ਉਹ 27% एरिया ब्रिक्स कोल है पूरे वर्ल्ड ਦਾ। लैंड ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ब्रिक्स ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ वर्ल्ड ਦਾ ब्रिक्स ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ 27%। ਜਿਵੇਂ ਉਧਰ 3 ਤੇ 21 ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਸਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਚਲੋ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਆਏਗਾ। और अगर आबादी की गल करा तो 41% है ब्रिक्स कोल। मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड की आंसर आएगा चाइना। मोस्ट पॉपुलस, सब तो ज्यादा आबादी चाइना दे विच है। इंडिया को, इंडिया दा सेकंड रैंक है पॉपुलेशन दे विच। मोस्ट अगर आप लैंड की गल करिए, सब तो बड़ा देश केड़ा? रशिया। इंडिया दा रैंक किथे है? 7वां रैंक है। ठीक है, आप पॉइंट क्लियर हो गए? 27% 41%, 27% लैंड, 41% आबादी ब्रिक्स कोल है। और साउथ अफ्रीका ने कदों ज्वाइन किया? 2010। चलो पहले इस तो पहले आप जिन्ना कितना उन्होंने रिवाइज करते हैं। ठीक है, रिवीजन ना रह जाए नेक्स्ट सेशन करके, अगे तो आप नेक्स्ट लेक्चर्स भी डिस्कस कर लांगे। ठीक है, आप डिस्कस कर रहे सी, एक तो आप रेलवे का देखिए, रेलवे के टोटल जोन कितने सी? 18 जोन है। इंडियन रेलवे के पूरे इंडिया टोटल जोन कितने हैं? 18 जोन है। और केड़ा इनिशिएटिव लेता? मेरी सहेली, ताकि वुमेन दी सिक्योरिटी दे काम, राइट।
अगर मैं गल करा इंडियन आर्मी की, इंडियन आर्मी ने केड़ी ऐप नु लॉन्च किया? SAI, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, SAI। किदा है? मैसेजिंग ऐप है, जिवें आपां मैसेंजर यूज करते हैं, ठीक है, WhatsApp यूज करते हैं, फेसबुक ते मैसेंजर यूज करते हैं, उदां दी ऐप है, बट इन्हां दी आपस दे विच सिक्योर्ड है, ठीक है। उस तो बाद इंटरनेट की मैं गल करा तो इंटरनेट के रिलेटेड आप किन्ने को क्वेश्चन देखे, आप ये देखिया पूरे वर्ल्ड दे विच पहली कंट्री यूएसए जिन्हें फाउंड किया 1969। 1969 दे नाल होर क्वेश्चन मैं करवाया सी, पहली बार बैंक नेशनलाइज हुए किन्ने? 14। किस प्राइम मिनिस्टर टाइम में काम होया? चलो क्वेश्चन होर, दूसरी बार बैंक कदों नेशनलाइज? वेरी गुड, 1980। 6 बैंक फिर तो नेशनलाइज किए गए 1980 दे विच जाके, सेम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी दूसरी बार फिर आई सी मोरारजी देसाई तो बाद। इन्होंने पॉलिटिक्स डिस्कस करांगे, ठीक है, बट मैं थोड़ा जिहा नाल-नाल ब्रीफ कर रहे हैं जेडे भी क्वेश्चन मेरे माइंड च आ रहे हैं। एंदा मतलब 2 बार बैंक नु नेशनलाइज किया गया, दोनों बार प्राइम मिनिस्टर कौन है जी? इंदिरा गांधी। 1969 ते 1980, 14 ते 6। पहली बार 14 बैंक नेशनलाइज हो रहे, दूसरी बार 6 बैंक नेशनलाइज हो रहे। एक क्वेश्चन हो रहा है, सब तो पहला बैंक इंडिया का फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नोट करें क्वेश्चन, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, आंसर क्या आएगा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये क्वेश्चन आ चुके हैं पंजाब च। अगर वो कहे ना ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया स्टिल इन एग्जिस्टेंस, फिर मैं कहूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हल्ले भी एग्जिस्ट करता है, बट बैंक ऑफ हिंदुस्तान आज एग्जिस्ट नहीं करता। क्वेश्चन कितना दे? 2 तरह के क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, आंसर आ गया। ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया स्टिल इन एग्जिस्टेंस, दैट इज SBI। ये करांगे ਆਪਾਂ किसी दिन बैंकिंग के ऊपर भी डिस्कशन करांगे, कितना दे क्वेश्चन आ सकते हैं आगे सर। चलो 2 मिनट बस, ठीक है। अगर आप पूरे वर्ल्ड की गल कर रहे हैं तो कदों आएगा? 29 अक्टूबर 1969। 29 अक्टूबर को केड़ा दिन आया? इंटरनेशनल इंटरनेट डे। और अगर मैं गल करा जी इंडिया की, मैं गल करा तो इंडिया का की आ गया 15 अगस्त 1995। किन्होंने शुरू किया? BSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। बट 3 साल तक सरकार ने कहा कि असी काम करांगे। 98 च जाके उन्होंने सेक्टर प्राइवेट सेक्टर वास्ते ओपन करता, कंपनियां आके इन्हां दे विच इन्वेस्टमेंट कर सकदी है, राइट। इस तो बाद नोटा बारे डिस्कशन की, 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जेडे माइंड च आ रहे हैं केड़े-केड़े। नोटा दा मतलब नन ऑफ द अबव। कि ये पॉजिटिव वोटिंग है या नेगेटिव वोटिंग है? नेगेटिव वोटिंग है। अपना राइट टू रिजेक्ट की फंडामेंटल राइट है या नहीं? यस, इट इज फंडामेंटल राइट अंडर व्हिच आर्टिकल 19(1)(a। आर्टिकल 19 किनु रिप्रेजेंट करता है? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपा अपना व्यू दे रहे हैं, आपा एक्सप्रेस कर रहे हैं जी, सानू कोई पर्सन पसंद नहीं है। नन ऑफ द अबव, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वोटिंग। इंडिया किनवा देश बनया? 14वां देश बनया जिन्हें नोटा दे कांसेप्ट मतलब नेगेटिव वोटिंग को इंट्रोड्यूस किया। और सुप्रीम कोर्ट दी जजमेंट किस ईयर च आई? 2013 की जजमेंट आई कि नोटा दा कांसेप्ट ले आओ। इस टाइम चीफ जस्टिस कौन सी? पी साथासिवम। इस टाइम इंडिया दा चीफ जस्टिस कौन? एस ए बोबडे। पहला चीफ जस्टिस कौन सी इंडिया? हीरा लाल जी कानिया। करांगे, चलो कोई गल नहीं, कोई क्वेश्चन लगे इन फ्यूचर सारे आने पॉलिटिक्स, ठीक है। ये ना सोचियो कि यह चीज बड़ी नहीं हुई है, सारा कुछ होने वाला है फ्यूचर। और लोकसभा ने पहली बार नोटा का कांसेप्ट 2013 च इंट्रोड्यूस किया, राज्यसभा ने 2014 च किया, पहली स्टेट ने इंप्लीमेंट किया गुजरात। उस टाइम कौन सी सीएम उतो दा? नरेंद्र मोदी सी। ब्रिक्स समिट 2020 किन्ने होस्ट किया? रशिया। टोटल कंट्रीज कितनी है ब्रिक्स? 5। बी दा मतलब ब्राजील, आर मतलब रशिया, आई मतलब इंडिया, सी तो चाइना, एस तो साउथ अफ्रीका। होस्ट लीडर कौन सी? व्लादिमीर पुतिन। कौन है? रशिया का राष्ट्रपति है। साउथ अफ्रीका ने ब्रिक नु कदों ज्वाइन किया? 2010। ब्रिक नु फाउंड कदों किया? 2006। एनुअल समिट 2009 2007 10 दे विच साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया। ब्रिक टर्म किन्ने दित्ती? यूएनओ डे कदों हुंदा है? 24 अक्टूबर नु हुंदा है। किस वर्ल्ड वार तो बाद बने? WHO दी फुल फॉर्म? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यमुना किंदी ट्रिब्यूटरी है? गंगा। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? यमुना। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज दस्या जे 3 केड़ी? सन राइट है, याद नहीं हो रही सी जीके जड़ी ਆਪਾਂ पढ़िया। लेफ्ट जीके, राइट सन। राइट मतलब सोन एक आ गई, याद वाईडी यमुना ते दामोदर की हुगली ट्रिब्यूटरी है, डिस्ट्रिक्ट। बाकी अपन नेक्स्ट सेशन